We are on Facebook Live. We are, of course, on the road for the Quint covering the UP elections. And this is the Samajwadi Party war room. We had seen the other side yesterday. So today, as you can see on those posters, that's, of course, the Samajwadi Party slogan, Kaam Bolta Hai. We will be meeting the Bollywood lyricist Manoj Yadav, who actually is the force behind that slogan. He was also, of course, responsible for the World Cup anthem of 2011 and has also written many songs for films like Piku and Rais and many other movies, and we'll be meeting him in just a moment. Like always, you can send in your questions and your comments, and we'll be taking them live on this FB Live from the Samajwadi Party War Room. And here is Ashish. Hi Ashish. So tell us a little bit about yourself. You used to be हमारे जैसे होते थे आप? जी बिल्कुल। आप पत्रकार थे? डेवलपमेंट के बहुत सारे काम किए हैं और हम चाहते हैं कि दोबारा वो मुख्यमंत्री बने, इसलिए हम उनको हेल्प करने वॉलंटरीली आ गए हैं। तो बीबीसी में आपने कितने साल काम किया? बीबीसी में मैंने लगभग 12 साल काम किया है और बीबीसी में मैंने अफ्रीका में, साउथ एशिया में, यूरोप में काफ़ी देशों में जाके पर ये तो बहुत अलग दुनिया हो गई। नहीं ठीक है, यूपी के हैं तो इस दुनिया को भी बड़े बेहतर तरीके से समझते हैं और हम समझते हैं कम्युनिकेशन किस तरह से और मदद कर सकता है, जो डेवलपमेंट का काम है मुख्यमंत्री जी का, उसको आगे बढ़ाने में। अच्छा, मैं यहाँ एक चीज़ कहना चाहती हूँ। नॉट मेनी पीपल वुड नो दैट देयर वाज अ टाइम व्हेन चीफ मिनिस्टर अखिलेश यादव ही वांटेड टू डिस्ट्रीब्यूट लैपटॉप्स एंड इट्स बिकम अ कॉर्नरस्टोन ऑफ हिज एंटायर कैंपेन। लेकिन उनकी पार्टी में जो बाकी पुराने सोच के नेता थे, उन्होंने कहा क्यों भाई आप लैपटॉप क्यों बांट रहे हैं? एंड in fact, in his exclusive interview, which you can catch on the Quint, which he did with me earlier today, he talks about that कि कैसे उनको struggle करना पड़ा एक नई सोच लाने के लिए समाजवादी पार्टी में। Now, who would have thought that that a party which initially resisted Akhilesh Yadav's plan to distribute these laptops today is running this very, very high-tech social media campaign? Has this election really become a little bit about who wins the social media battle? First, tell us who you are and your background. Ahmed Aftab Naqvi. I'm the CEO, co-founder of Guzoob. We are one of India's largest independent digital agencies. For me, I think this election, 3 to 4% of the audience, of the voters, are the ones who are educated audiences and always connected. Yeah. And possibly they're going to be voting for things which are beyond traditional voting criteria. Right. And I think social media is playing a very vital role. But can it actually, this is a question we ask again and again, can it replace old style politics and, you know, the old intimacy of, let's say, a door-to-door campaign? I think door-to-door campaign is extremely crucial still for a UP-based election. But social media is that game changer. It is that X factor which is amplifying whatever communication we are doing. If you see the campaign, it is not just Kaam Bolta Hai. It's hash Kaam Bolta Hai. So it's a two-way. So it's a hashtag. Can we just have Abhi, can you just tilt up and we'll talk a little bit about this hashtag. ये hashtag की राजनीति क्या हो गई है? Hashtag was actually a social experiment, a political social experiment where we launched a small teaser in the month of September with the song Kaam Bolta Hai. And it was a 40-second teaser. But why hashtag? What is the importance of the hashtag? Because it's not a one-way communication in the true sense of social media, and people are taking photographs of all the development work that has happened and sharing with us with this hashtag. So I think it has worked brilliantly in that format. So, of course, because it is not a one-way medium, even we as journalists are learning that, and I'm going to get my phone in a moment from now, because remember, we are taking your questions as well. We are on Facebook Live from the Samajwadi Party War Room. आपके कुछ सवाल हों, आपके कुछ कमेंट्स हों, तो हम ज़रूर यहाँ पर आपके सवाल लेंगे. प्लीज़ अपने सवाल यहाँ पर भेजिए. स्पेसिफिक क्वेश्चंस, नॉट जस्ट पॉलिटिकल ट्रोलिंग. अच्छा, ट्रोलिंग के बारे में यहाँ किसी से पूछते हैं. ट्रोलिंग तो हर पार्टी की होती है. सो व्हाट इज़ योर व्यू ऑन ट्रोलिंग, एंड डज एवरीबody encourage political trolling? We really don't, because we keep our message very straightforward and very positive. So yeah, there are agents who troll people on the internet. सब पार्टीज ट्रोल करती हैं, लेकिन कुछ ज्यादा बेटर करती हैं ट्रोल, कुछ कम एफिशिएंटली करती हैं. Well, let me put it this way: we know how to make jokes, but we don't engage in unnecessary trolling. What is necessary trolling? What is necessary trolling? If you know, there are trolls on the internet. If I know, I get trolled every yeah, day. I know, right? So if we have put a positive message forward, and if there is some troll, we do make sure that we reply to them while sticking to our key message. That's all. Okay, so we are taking your questions. I'm going to get my phone back in just a moment with that questions and that comment page open. But Ashish, you can tell us a little bit about what's happening here. And it's actually really nice to see a woman. I keep saying कि यहाँ पे हमें औरतें दिखती ही नहीं है इन सारे war rooms में. Tell us a little bit about yourself. Hi, I'm Juhi. Yeah. I look after the monitoring cell
Okay. So we are basically understanding what you are telling people. Monitoring cell is all these TV channels there, as you can And see. of yes. course, And of course the social media. Of and course, the digital, social yeah. media as well as the conventional Yeah. newspaper. So we haven't, we just need to know what you people are thinking, and we take it as a guiding light. So there's a question already coming here, Ashish. Maybe you want to take it or anybody else. If Samajwadi Party was working so well in Uttar Pradesh, तो कांग्रेस की क्या जरूरत थी? नहीं, लाइक CM is saying कि अच्छा कर ही रहे थे और गवर्नमेंट आने वाली थी, पर कांग्रेस के साथ से हम 300 पार हो जाएंगे और बहुत मजबूती से सरकार बनेगी। पर उन्होंने आज मेरे साथ एक इन डेप्थ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू किया, वो भी आप देख रहे हैं, वो भी काफी वायरल हो रहा है। उसमें उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी ये याद रखें कि उनको मतलब ज्यादा जरूरत है हमारी, ना कि हमें उनकी, और ये उनके लिए एक मौका है अपनी संगठन को दोबारा बनाने का। तो अगर मुख्यमंत्री जी ने ऐसा कहा है तो ठीक ही होगा। So you are being very, very careful here. Tell us a little bit about the background of your volunteers here. So, I mean, they are all young youth professionals working for us and they are working voluntarily. अगर आप देखेंगे अभी अजय जी आए हैं, ये यूएस से आए हैं और एक हफ्ते के लिए केवल ये अगर आप एक तरफ साइड पे हाँ सॉरी जी हाँ अजय जी आए यूएस से आए और वैसे पेशे से न्यूरो सर्जन है, पर आके क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने इतना डेवलपमेंट का काम किया है, ये भी जालौन के रहने वाले हैं उत्तर प्रदेश से, पर पिछले करीब 25-30 साल से यूएस में रह रहे हैं। अब यहाँ पर आके ये कैंपेन में हमारा साथ दे रहे हैं। डिटेल आप अजय जी से खुद पूछ सकती हैं क्या कर रहे हैं। सो एज अ डॉक्टर आप अपने बारे में कुछ बताइए, व्हाट इज योर बैकग्राउंड एंड व्हाट मेड यू कम हियर? So I'm a neurosurgeon in United Yes. States, in Yes. Pittsburgh. And actually, in the past, I had come to discuss some of the medical projects with Akhilesh ji. But I was so impressed with him and with the kind of politics that he does, with his positive attitude, that I decided that whatever time I have, I will volunteer and for this. Did you know him before this? Yes. Personally? Yeah, I had met with him personally 3 years ago. Yes. एक सवाल यहाँ पे आ रहा है, क्या प्रशांत किशोर अब समाजवादी पार्टी की भी कैंपेन चला रहे हैं? क्या ये जॉइंट स्ट्रैटेजी रहेगी अब? नहीं, देखिए जो हमारा कैंपेन है वो है काम बोलता है एंड इट्स लाइक वेरी फोकस्ड ऑन द डेवलपमेंट वर्क विद सीएम हैज डन। तो हमारा फोकस अभी भी वही है और 8 मार्च तक हमारा कैंपेन काम बोलता ही चलता रहेगा। और भी सवाल आ रहे हैं मोहम्मद रिजवान का, कांग्रेस के साथ कब तक चलेगा गठबंधन? वेल रिजवान साहब, मैं आपको बता दूं कि आज अखिलेश जी ने मेरे इंटरव्यू में बोला कि मैं तो चाहता हूं 2017 के बाद 19 तक चले, 19 के बाद भी चले, पर उन्होंने एक बात जोड़ दी उसके साथ। मैंने पूछा उनसे कि इस नेशनल अलायंस अगर ये रहती है तो उसका नेता कौन होगा? उन्होंने कहा ये तो जनता तय करेगी। सो क्वेश्चंस ऑफ कोर्स आर बीइंग आस्क्ड अबाउट वेदर अ विन इन यूपी, if he wins, could mean his arrival on the national stage. Now, a lot of people are asking, ये war room का point क्या है? ये जो एक political vocabulary में ये एक शब्द आ गया है war room, क्या मतलब है? मतलब देखिए हम लोग यहाँ पर काफी 3-4 और टीम हम अभी भी देख रहे हैं, sorry, just a minute, we are seeing joint rallies between Akhilesh Yadav and Rahul Gandhi. राइट। ये war room क्या है? हाँ, वॉर रूम में बेसिकली क्या है, हम लोग जैसे एक सिंक्रोनाइज्ड कैंपेन करना चाहते थे। अलग सोशल मीडिया टीम, हमारी क्रिएटिव प्रोडक्शन टीम, न्यूज मॉनिटरिंग टीम, सब लोग एक साथ बैठ के एक ही संदेश, एक ही मैसेज लोगों तक पहुंचाएं। इसके लिए एक साथ एक जगह बैठना जरूरी था। अब चूंकि इलेक्शन का समय है, वक्त बहुत कम है और कम वक्त में हमें ज्यादा काम करना है, तो इसलिए इकट्ठे होकर इसको हमने वॉर रूम का नाम दिया है। यहाँ पे एक ये भी सवाल है मनसब रिजवी का, व्हाट इज देयर सैलरी? यहाँ जो वॉलंटियर्स हैं, आप ही से पूछती हूँ भाई, क्या आपकी बैकग्राउंड क्या है, पहले बताइए। एक्चुअली मैं अभी एज अ रिसर्च स्कॉलर अभी काम करता था, लेकिन अभी अखिलेश जी के साथ मैं पिछले 1 महीने से काम कर रहा हूँ। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मेरा जो वर्क है यहाँ टीवी चैनल्स को मॉनिटर करना है और जो भी रिपोर्ट्स निकल कर आती हैं हम आगे आशीष सर तक तो बताते हैं। लेकिन व्हाट इज देयर सैलरी का जवाब? देखिए हम लोग सब वॉलंटियर्स हैं यहाँ पर और बिना 1 रुपए लिए काम कर रहे हैं। 1 भी रुपया नहीं? जी बिल्कुल। तो You can check my bank account. No money coming from Samajwadi Party. So what will happen after the election? So we'll go back and do our regular jobs. So we are here till 11th. We'll celebrate the victory and go back. You're confident, of course we know that on the 8th. अच्छा, एक और सवाल आया है, जब हम बीजेपी के वॉर रूम में गए तो उन्होंने कहा कि मेन लड़ाई व्हाट्सएप पे चलती है आजकल और हमारे 8000 व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं। तो एक सवाल आया है कि हाउ डज समाजवादी पार्टी कंपेयर ऑन दिस व्हाट्सएप स्ट्रेटजी? देखिए सबसे पहले बताऊं, वो लड़ाई का शब्द प्रयोग करते हैं, हम लड़ाई झगड़े में विश्वास ही नहीं करते। हम बिल्कुल भाईचारे में विश्वास करते हैं और हमारी जितनी भी ये तो सब कहने की बात है। नहीं बिल्कुल सकारात्मक कैंपेन है, हम पॉजिटिव कैंपेन बात करते हैं। और व्हाट्सएप पे भी अगर आप देखेंगे तो ज्यादातर जो वीडियो हम शेयर करते हैं वो मुख्यमंत्री जी के काम वाले वीडियो होते हैं। जैसे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का वीडियो देखेंगे, आप मेट्रो के बारे में वीडियो देखेंगे, केवल और केवल काम की बात करते हैं।
अच्छा, यहाँ पर बहुत ही चुपचाप यहाँ खड़े हैं मनोज। जी सबसे मनोज को जरा इंट्रोड्यूस करिए। पहले तो सबको याद होगा वर्ल्ड कप 2011 जिसमें इंडिया जीती थी ना। मैं क्रिकेट बिल्कुल नहीं देखती, लेकिन शायद इतना तो मुझे भी मालूम है। तो उसका एंथम का स्लोगन आप बताइए, इनको इंट्रोड्यूस करिए। ये मनोज यादव जी हैं, बॉलीवुड के बेहतरीन राइटर हैं और अब वॉर रूम में आके इनका एक और टैलेंट हम लोगों ने एनहांस कर दिया है। ये बहुत अच्छा गाते भी हैं। नहीं, पहले इनकी बैकग्राउंड दीजिए जो जानते ना हो। एक तो वर्ल्ड कप एंथम इन्होंने दिया, बहुत से इन्होंने गाने दिए। इन्होंने काफी प्रसिद्ध फिल्मों के गाने लिखे हैं। इन्होंने पीकू का गाना लिखा है। आप खुद ही बता दीजिए। रईस अभी रिसेंटली रईस शाहरुख सर के लिए लिखा है। क्लाइमैक्स सॉन्ग है सांसों के। और अजहर है, गब्बर है, हाउसफुल है, ग्रैंड मस्ती है, नीलमट्टी सन्नाटा है। सो कुछ फिल्में हैं, कुछ कॉर्पोरेट एड्स जिंगल्स करते हैं बस। तो एक कहा जा सकता है कि वर्ल्ड कप एंथम जिसने लिखा वो आज अखिलेश के लिए बैट कर रहे हैं। देखिए, मैं आजमगढ़ से हूँ, जी, यूपी से हूँ, तो मेरी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि यूपी में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, तो अपना एक ओपिनियन और अपनी वॉइसिंग करूँ। तो मुझे लगा कि इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। और वैसे भी पॉलिटिक्स मुझे इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आती है, लेकिन पॉलिटिक्स में पहली बार कोई इतना पोलाइट लीडर लगा। तो इट इज तो आपने इनको ढूंढा कि इन्होंने आपको ढूंढा? वो लिखा था, किस्मत में मिल गया, टकरा गए। कैसे मिले? वो पिछली बार 2011 में एक कैंपेन थी, मन से है मुलायम और इरादे लोहा है, 2014 में नेताजी के लिए जो लिखना था, तो वो मैंने लिखा था। तब श्री अखिलेश जी ने मुझे बुलाया था कि आप आइए, और गाना डिस्कस हुआ था। तब से हम जानते थे, और फिर इस बार तो उन्होंने सामने से बोला कि मनोज को बुलाओ। So I just want to tell people who are watching this, and lots of people watching it live, Manoj Yadav of course gave us the slogan "De Ghuma ke" for the World Cup in 2011, and he has written songs for Piku, for Raees, for many other movies. And he says मैं politics के बारे में कुछ जानता नहीं, लेकिन यहाँ मेन स्टार हैं वॉर रूम के। तो ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है। मैं आपको बताती हूँ मनोज, अभी हम आ रहे हैं, हमने 4 यहाँ के जो लेखक लिखने वाले हैं और शायर हैं, हमने उनका इंटरव्यू किया और हमने उनसे कहा कि भाई सियासत तो चलती है, लेकिन लखनऊ में शायरी भी साथ साथ चलनी चाहिए। हाँ जी। तो अगर शायरी आप सुनना चाहती हैं तो मैं 2 पंक्तियां इन्हीं पर सुनाता हूँ जी। कि दर्पण साहब साफ है जनता का संदेश, सेवा देख के मांगता यूपी फिर अखिलेश। तो उनसे भी एक सवाल आया था कि भाई क्या आजकल जो पोइट्री और स्लोगन राइटिंग क्या एक ही चीज हो गई है? नहीं, देखिए, अगर पोइट्री सही निकल गई आपकी और स्लोगन सही निकल रहे हैं, तो इसका मतलब उसमें जेन्युइनिटी है, एकदम जेन्युइन चीज़ है। क्योंकि आर्ट जो है वो आमद की बात होती है, उसको आप किया नहीं जाता। यू आर ब्लेस्ड विद दैट। आपको शब्द चुनते हैं, आप शब्द को नहीं चुनते। तो आप किसी कैरेक्टर को फॉलो करते हो, और अगर कोई शब्द अच्छे निकल रहे हैं, तो इट मीन्स उस कैरेक्टर में इतना पावर है जो आपको ड्राइव कर रहा है लिखने के लिए। अच्छा, पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि, एंड आशीष दिस विल बी ऑफ इंटरेस्ट टू यू आल्सो, कि आजकल एक नया एक फिनोमिनन आ गया है ऑफ पोस्ट आइडियोलॉजी कम्युनिकेशन मैनेजर्स। तो अगर आप प्रशांत किशोर को भी देखें तो वो पहले मोदी जी के साथ भी रह चुके हैं, फिर कांग्रेस के साथ आए, अब एसपी कांग्रेस दोनों को एक तरह से मदद कर रहे हैं, बट ही इज नॉट आइडियोलॉजिकल। क्या आप लोग जो आप लोग सब हैं, इज दिस लाइक हैज पॉलिटिक्स बिकम और पॉलिटिशियंस हैव बिकम लाइक अ क्लाइंट फॉर यू, कि आप क्योंकि अग्री करते हैं पॉलिटिकली या सोच में कि आप यहाँ आते हैं? नॉट एग्जैक्टली। जैसे मैंने आपको बताया, हम लोग जो आए हैं वो डेवलपमेंट का काम देख के आए हैं। जैसे हम लोगों ने पास में बीएसपी की गवर्नमेंट भी देखी है, जैसे मनोज ने बताया हम लोग यूपी के रहने वाले हैं, बीएसपी की गवर्नमेंट भी देखी है, बीजेपी की गवर्नमेंट भी देखी है। और अगर हम खुद से मतलब जैसे बीएसपी वालों से ही पूछते हैं कि वो गिन के बता दें 10 काम किए, तो उनको 10 मिनट लग जाते हैं सोचने में कि वो 10 काम क्या है ना। जब हम अखिलेश जी की बात करते हैं तो आप भी जैसे कल जनता में जाके आप टुंडे को आपके वहाँ जाके आप पूछ रहे थे, सब लोग बता रहे हैं कि उन्होंने काम किया, हर कोई बोल रहा है काम किया। तो जो पर ये वही प्रदेश है जहाँ स्वीप हुआ था बीजेपी का 2014 में, ये ना भूलें। जी, वो आप सही कह रही हैं। तब केवल सरकार में 2 साल हुए थे, उसके बाद जो काम जो दिखने लगे हैं, जैसे एक्सप्रेस वे है, मेट्रो, वो अब दिखने लगे हैं। तो लोगों को अब पता चल रहा है कि असल में काम क्या हुआ है और किसने किया है। मनोज, आपसे भी यही पूछूंगी, डू यू सी योरसेल्फ एज अ प्रोफेशनल, लाइक यू आर अ प्रोफेशनल सॉन्ग राइटर, लाइक आप रईस के लिए भी लिखते हैं और आप पीकू के लिए भी लिखते हैं, क्या आप अखिलेश यादव के लिए भी लिखेंगे और मायावती के लिए भी लिख सकते हैं? नहीं, मैं सिर्फ और सिर्फ श्री अखिलेश जी के लिए लिख रहा हूँ। मैं पॉलिटिकली, मैंने आपको पहले ही कहा कि मैं सभी के लिए नहीं लिखता, बट मैं दिल से मतलब इतना इम्प्रेस हूँ उनके काम से। एंड बड़े दिनों बाद, मैं तो बॉम्बे में रहता हूँ, किसी को बोलता हूँ तो यार चलो मेरे गांव, कभी तो कोई तैयार नहीं होता था। अब सब बोलते हैं यार यूपी चलना है तेरे साथ एक बार। अच्छा। अब ये इतना बड़ा अचीवमेंट है तो ये मुख्यमंत्री जी की वजह से है। सो ये मेरी तरफ से जो मेरा आर्ट है, मेरा टैलेंट है, मैं ऑफर कर रहा हूँ। क्योंकि यूपी में अखिलेश यादव जी बहुत ज़रूरी हैं, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उनका विजन अच्छा है, वो सबके बारे में सोचते हैं।
मैंने वैसे ही कहा कि पॉलिटिक्स में पोलाइट आदमी होना बहुत ज़रूरी है और उनसे अब देखिए आपके लिए एक सवाल आ रहा है और इनका नाम भी मनोज यादव है और जो पूछ रहे हैं सवाल उनका नाम भी मनोज यादव है यहाँ पे। ये देखिए यहाँ लिखा है मनोज यादव। उनको बोलिएगा सिलेबस से बाहर का ना पूछें बस। हाँ, ये बोल रहे हैं, अब पता नहीं नाम असली होगा। मनोज यादव के लिए पूछ रहे हैं। मनोज जी यादव होने की वजह से क्या सपा के साथ हैं कि उनके काम की वजह से? दिल से जवाब दो। दिल से मुख्यमंत्री जी का काम बोलता है और उनकी काम की वजह से मनोज यादव यहाँ पर हैं और कोई दूसरी वजह नहीं है। पर एक बात बताइए, क्योंकि यहाँ पर हम सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अभी भी जात और धर्म की राजनीति सभी पार्टियां करती हैं। आप जैसे यंग आदमी के लिए जो एक बॉलीवुड की दुनिया में गए जहाँ पे बिल्कुल मेल्टिंग पॉट है, कल्चर का मेल्टिंग पॉट है, देयर इज नो रिलीजन इन कास्ट इन बॉलीवुड लाइक दैट, तो आपको अजीब लगता है कि आप वापस एक ऐसे माहौल में आ गए हैं जहाँ पे पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी के लिए ये सब स्टडी करना जरूरी हो जाता है? नहीं, जैसे मैंने कहा कि मुझे आई डोंट थिंक कि अब ये चीज़ है इतनी, क्योंकि मैं जिन लोगों से मिला हूँ, मैंने भी अभी ट्रेन से जर्नी की, आजमगढ़ से लखनऊ आया बिकॉज मैं आजमगढ़ में था, तो ट्रेन में मैंने कहीं किसी को नहीं देखा, मैंने किसी का जो भी बात कर रहे थे मैं हर आदमी से ऐसे ही बात करने लग रहा था कि देखूँ जा रहा हूँ लखनऊ तो कुछ लोगों से बात कर लूँ। हर आदमी तारीफ है, भाई कुछ भी बोलो लेकिन अखिलेश यादव ने काम बहुत किया है। एक बात तो माननी पड़ेगी कि अखिलेश ने काम बहुत किया है। अगर वो रह जाए 5 साल और तो यूपी का भला हो जाएगा। तो मैंने ना उनसे उनका नाम और जात पूछी, ना उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कौन से बिरादरी के हो। बट ये जो सभी लोगों ने डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग हैं। अब आप बताइए कि मुझे तो नहीं कोई दिख रहा था कि ऐसी कोई बात कर रहा है। अगर ऐसे कुछ हो तो आई डोंट नो वो कहाँ है बंदा, और मेरे से मिले तो मैं उसको कन्विंस करूंगा कि ऐसा कुछ नहीं है। You want to add to that before I ask Manoj to sing for us? Yes. नो आई वाज जस्ट मैं आपको अपनी टीम की एक और अहम मेंबर से मिलवाना चाहता हूँ। जी आप अंशुमन से मिलवाना चाहता हूँ, पर अंशुमन शर्मा है जी। मतलब आप कह रहे हैं कि अंशुमन यादव नहीं है जिसका सवाल है? जी जी, तो अंशुमन शर्मा है और अंशुमन अभी हाल में हार्वर्ड से पढ़कर आए हैं और हमारा पूरा रिसर्च का काम देख रहे हैं। So Anshuman, tell us a little bit about yourself. I used to work with Ashish BBC में. Then I went to. तो आप भी मेरे जैसे जर्नलिस्ट थे? I was managing programs on information communication technology, and then I went to Harvard for a year on a Fulbright scholarship. Public health is my background, and then I've been working with Akhilesh ji for about 2.5 years. So how did you come into this? We met him in 2015, early 2015, ऐसे ही casually. तो ऐसी ही बात हुई कुछ. I suggested some ideas. He really liked it. He's very open to feedback and new ideas. So that is why that is what impressed me in him. And अच्छा, एक इंटरेस्टिंग सवाल आ रहा है। ये भी मनोज है लेकिन यादव नहीं है, ये मनोज कुमार है। ये कहते हैं कि हम भी बीएसपी की सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं लेकिन हमें वॉर रूम की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमने बहन जी को आने दो की कैंपेन की है और वो सक्सेस हो रहा है। ये एक ज़रूरी सवाल है क्योंकि आशीष ऐसी भी कम्युनिटीज़ हैं जो इनका इतना सोशल मीडिया पर प्रेजेंस ना हो। क्या ये सोशल मीडिया के बज़ में हम क्या असली लोगों को भूल जाते हैं? क्या हमें लगने लगता है कि ये जो एको चेम्बर्स हैं, ये व्हाट्सएप की दुनिया जहाँ पे झूठ भी बहुत होते हैं, ट्विटर इंटरनेट पे झूठ भी बहुत होते हैं, क्या एक डेंजर है कि बाहर की रियलिटी जहाँ लोग रहते हैं? आई थिंक सोशल मीडिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और मनोज जी जिन्होंने क्वेश्चन पूछा है वो पॉइंट उठा रहे हैं, बट सोशल मीडिया पे उठा रहे हैं। बट ऑफ कोर्स हम लोग सोशल मीडिया से बाहर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में वी बिलीव अ लॉट, और सोशल ये वॉर रूम के साथ हम लोग यहाँ एक कॉल सेंटर भी चलाते हैं जहाँ से हम वी कॉन्टैक्ट आवर पार्टी बूथ लेवल वर्कर्स, और वी हैव अबाउट 1,60,000 पार्टी बूथ लेवल वर्कर्स जिनसे हम डायरेक्ट फीडबैक लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या चल रहा है। तो ऑब्वियसली इट कैन बिकम अ बबल कि यहाँ पे बैठ के कि सब So how do you guard against that bubble? by contacting people on the ground every day. मोहम्मद नमान का सवाल है, राइट्स रोकने और लॉ एंड ऑर्डर सुधारने के लिए एसपी क्या करेगी दोबारा सत्ता में आने पे? और ये जरूरी सवाल है आशीष। These are the things that matter to people outside of WhatsApp and Facebook. देखिए डायल 100 की सुविधा तो अभी दी है, और डायल 100 में जो टेक्नोलॉजी यूज़ की हुई है वो मतलब इंडिया में किसी और प्रदेश में ऐसा नहीं हुआ है। उसको आगे ले जाके और इन जो कानून व्यवस्था सुधारने की बात है वो काफ़ी कुछ उसमें लगाम ऑलरेडी लग चुकी है और आगे भी लगेगी। So in the end, Manoj, I think we must end with the music. भारत में चुनावों की एक ये मज़ेदार चीज़ है कि अभी भी कलर होता है और गाना बजाना होता है, स्लोगन्स में भी मज़े होते हैं। तो पहले तो जो आपने ये स्लोगन बनाया उसका थोड़ा इस तरफ देख के बताइए, ये स्लोगन के बारे में बताइए। और काम बोलता है तो वो कलेक्टिव उस गाने के हिसाब से सभी लोगों ने डिसाइड किया कि कैंपेन होगा क्या। तो सिंस 5 years सीएम साहब काम कर रहे थे, तो उन्होंने बोला कि जो काम किया वो लोगों तक ले जाओ, डोंट ग्लोरीफाई मी, बिकॉज उससे कुछ भला नहीं होगा किसी का और कुछ बेनिफिट नहीं है किसी को। तो जो 2 पंक्तियाँ मुझे ग्लोरीफाई करने में लगा रहे हो उसमें जो मैंने काम किए वो लोगों तक पहुँचाओ। सो दैट्स वाई इट्स काम बोलता है। इसमें जो भी है सब योजनाओं के नाम है इसमें, और कुछ ऐसा नहीं है कि
आप महान हो, आपके चरणों में जन्नत है वगैरह कुछ नहीं है ऐसा। No personality cult. बिल्कुल नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये गाना बाकी गानों से अलग है। इसके साथ साथ क्योंकि यूपी बहुत बड़ा प्रदेश है, विभिन्न डायलेक्ट यहाँ बोले जाते हैं, तो पूर्वी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड को ध्यान में रखते हुए हमने 2 गाने और लिखे हैं जो कि सोहर और बुंदेलखंडी में। तो इसके बारे में पहले बताइए बैकग्राउंड और फिर मैं हाँ देखिए, जैसे जब बाद में मैं और मनोज जी मुकुंद जी के साथ बैठे थे तो उन्होंने इनसे पूछा भाई आप आजमगढ़ के, आप बताइए आपके यहाँ क्या गाया जाता है, तो उन्होंने बोला हमारे यहाँ सोहर बहुत गाया जाता है। उन्होंने मुझसे पूछा आप झांसी के बुंदेलखंड के आपके यहाँ क्या गाया जाता है, मैंने कहा हमारे यहाँ आला बड़ा पॉपुलर है, तो उन्होंने मनोज जी को बोला फिर आला और सोहर भी आप बनाइए। चलिए, तो सोहर भी बन गया, आला भी बन गया, दोनों। तो पहले मैं आला करता हूँ। एक हाथ में सपा का झंडा, दूजे में लहराए तिरंगा। एक हाथ में सपा का झंडा, दूजे में लहराए तिरंगा। लोहिया चरण सिंह नेताजी की, सोच की मन में जमुना गंगा। बलिदानों का त्याग लिए, ये त्यागों का बलिदान लिए, यूपी का रहे मस्तक ऊंचा, प्रणय लिए अखिलेश जिए। सो इट्स लाइक दैट कि यूपी को ऊपर ले जाना। और दूसरा तो सोहर था, सोहर में लइके समाजवादी गंगा, विकासवादी जमुना हो, प्रगति की धारा, उन्नति की धारा, घर घर अखिलेश लाए हो। वेरी नाइस, एज म्यूजिक गोज, बाकी तो लोग ही फैसला करेंगे। एक बात बताइए बिफोर आई से रैप अप, कि आप बॉलीवुड से हैं, अगर बॉलीवुड का कोई सॉन्ग अभी 1-2 मिनट के लिए समाजवादी, बीएसपी, बीजेपी को भूल जाइए, अगर कोई गाना इंडियन पॉलिटिक्स को डिस्क्राइब करता है तो वो आपके लिए कौन सा गाना होगा, या अपना लिखा हुआ या किसी और का? नहीं, मैं तो जैसे आशीष जी ने बोला कि हम लोग प्रेम और उसकी तो उसी से तो मैंने हजार में एक गाना लिखा था। बताइए। कि चलो जी आज साफ साफ कहता हूँ, इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ। इतनी सी बात है, मुझे तुमसे प्यार है, यूं ही नहीं मैं तुम पे जान देता हूँ। Well, at least music has not gone out of our politics. Thank you so much. We are on Facebook Live. Manoj Yadav. She is the boss. I'm the boss. That I like. Signing off now from On the Road.